Good morning, everyone. Morning, sir. Good morning. Why the rest of the people don't join the class? Okay, did I ask you something to get information about? कुछ पूछा था मैंने आप लोग से? हम्म. Well, did I ask something to get information about? नहीं सर, वो आपने असाइनमेंट ही दिया था बस. Did I tell you something about the nomenclature of gene? जीन के nomenclature पे 3 डिजिट के जीन्स के नाम होते हैं. ऐसा कुछ बताया था मैंने आप लोगों को? नहीं सर, मुझे याद नहीं ऐसा कुछ. LAC, did we discuss about the LAC gene? हाँ, यस, लैक वाला. हाँ. I asked something, I suppose. वो उसको कैसे लिखते हैं? कैपिटल L, कैपिटल A, कैपिटल C, LAC. If is small L, हाँ, L, is there C. any difference and all something? Yeah, that's what I asked. Did you all get something about it? I tried to Any? find out in my book, book of 12th standard, no, genetics, Okay. NCERT, but there is nothing mentioned about it. Mm-hmm. Did you try surfing on internet? No, I didn't try it there. Okay. किसी और ने अमर है क्या? अमर नहीं है आज. Well, तो वो जो मैंने आपको पिछले बार पूछा था कि what does that, is there any difference between writing a gene's name as capital letters or small letters? We usually we denote them with 3-letter words, 3-letter nomenclature. And जैसे कि लैक का था तो that is lactose metabolism से related जितने भी enzymes थे, वो actually there are 3 different enzymes which are used in lactose metabolism. तो जो तीनों enzymes जो हैं, अब सीधी सी बात है, आप इस चीज़ को समझेंगे कि यदि मान लीजिए किसी लैक्टोज को डाइजेस्ट करना है या फिर मेटाबोलाइज करना है, तो you need those 3 enzymes in sequence so that lactose will be digested into monosaccharides. तो उसके लिए वो जो जीन है उस प्रकार उसका एंजाइम फॉर्म करेगा, वो सिंथेसाइज करेगा या मैन्युफैक्चर करेगा. लेकिन देखा ये गया है कि एक के बाद एक अलग अलग 3 एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है वहां पे, और तीनों एंजाइम्स जब भी लैक्टोज मेटाबॉलिज्म शुरू होगा तो वी वुड बी नीडिंग ऑल दोस 3, राइट? सो क्या है कि ये जो जीन है एक साथ ऑपरेट होता है. The portion of DNA fragment responsible for manufacturing a particular. One sec. So whenever the lactose has to be metabolized, we need all those 3 enzymes in sequence.
And if there is a fragment which is denoting for one enzyme, and second fragment for the second enzyme, and third fragment for the third enzyme, then they have to be sequentially triggered to form that particular enzyme, right? अब मान लीजिए एक एंजाइम क्रिएट हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, उसने अपना काम शुरू कर दिया, तो दूसरा अवेलेबल रहना जरूरी है, राइट? नहीं रहा तो फिर क्या होगा कि आधा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस शुरू होकर रुक जाएगा. फॉर दिस पर्पस हमने ऐसा डेवलप किया है, इन ड्यू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इट हैज बीन evolved like that. All these three fragments which are responsible for these three different enzymes which involve in the lactose metabolism are synthesized simultaneously. Then that means there is one DNA RNA to amino acid apparatus which would manufacture all these three enzymes simultaneously, so that that process can be accomplished, the process can be finished without any hindrance or obstacle. So इसको हम कहते हैं यानी कि एक साथ तीनों जीन्स एक ही मैकेनिज्म के थ्रू तीनों के तीनों जीन्स जो हैं वो इनिशिएट हो जाते हैं एंड प्रोग्रेस होते हुए टर्मिनेट होते हैं, एंड द एंजाइम्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड. अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पूछा था, आपने एक वर्ड सुना होगा, ओपेरा. ओपेरा नाम सुना है आपने? किसने भी नहीं सुना ओपेरा? सुना है सर. उसका क्या मतलब है, किसी को मालूम है? ओपेरा एक डांस ड्रामा होता है, जिसे हमारे यहाँ होता है ना नृत्य नाटिका बोलते हैं. तो वैसे ही ओपेरा जो है आपने सुना होगा, यूरोपियन कल्चर का है ये. और कैसा होता है कि सिंगिंग होती है, उसमें डांस होता है और एक स्टोरी को एनैक्ट किया जाता है. ओपेरा थिएटर्स होते हैं, एम्फी थिएटर्स, मतलब जो चारों तरफ से बैठ के देख सकते हैं, बीच में स्टेज रहता है, चारों तरफ बैठ के देखते हैं, एम्फी थिएटर्स. तो वो ओपेरा थिएटर्स हुआ करते हैं. तो ओपेरा में क्या है कि एक स्टोरी सुनाई जाती है with the help of dance and drama. That means 2 or 3 arts are involved to represent one act, that is one art या फिर one story. तो वो उसको कहते हैं ओपेरा. सिंगिंग अलग एक आर्ट है, डांसिंग एक अलग आर्ट है, और ड्रामा एक अलग आर्ट है. लेकिन हम जब इन तीनों के कॉम्बिनेशन को साथ में करते हैं तो उसको हम कहते हैं ओपेरा. और वैसे ही ये लैक को हम बोलते हैं लैक ओपेरॉन. तो वो लैक ओपेरॉन मतलब यही है कि लैक्टोस मेटाबॉलिज्म, जो तीन अलग अलग एंजाइम की जरूरत है, वो एक साथ ट्रिगर होते हैं और एक साथ मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. तो मल्टीपल जीन जो एक साथ एक ही इनिशिएटिंग सिस्टम के थ्रू वो तीनों के तीनों बनाए जाते हैं. तीन डिफरेंट प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस शुरू हो जाती है, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ ओनली वन इनिशिएटिव, वन स्टिमुलस. तो इसको हम इसीलिए इसको कहते हैं ओपेरॉन इज अ सिंगुलर वर्ड फॉर ओपेरा. तो लैक्टोस के केस में वैसा है, इसलिए हम इसको लैक ओपेरॉन बोलते हैं, एक साथ तीन होते हैं. वैसे ट्रिप ओपेरॉन भी है. ऐसे बहुत सारे ओपेरॉन जो है डिटेक्ट किए गए एट डिफरेंट लेवल्स एंड डिफरेंट एनिमल्स. अब बात आई थी कि इनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में. तो मैंने कहा था कि LAC कभी कभी स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ दिखता है और LAC कभी कभी कैपिटल लेटर्स में दिखता है. ये पता नहीं, जब मैं पढ़ता था तब भी मुझे ये पता नहीं था कि ऐसा कुछ बुक्स में ऐसा क्यों लिखा रहता है. तो जब हम पढ़ते थे बहुत ज़्यादा इसके बारे में लिटरेचर अवेलेबल नहीं था. बट आई थॉट कि दिस वुड बी अवेलेबल ऑन इंटरनेट, बट यू ऑल डिड नॉट सर्च फॉर इट. एनीवेज, both represent the same gene. Both, the way if it is written in capital letters and in small letters, both the way of representing the gene is same. That means
they denote for the same gene. The lac operon के लिए जो genes responsible है उसके बारे में ही वो मेंशन कर रहे हैं LAC और LAC में. लेकिन कैपिटल और स्मॉल का फर्क ये डिनोट करता है कि इफ एट ऑल यू आर राइटिंग द नेम ऑफ अ जीन इन कैपिटल लेटर्स, दैट मीन्स इट इज ह्यूमन जीन. And if it is not represented in capital letters, that means it's a non-human gene. It can be of any other animal. Okay, whenever a gene's name is represented in capital letters, that means you are talking about a gene which is there in human. Okay, and if it is not, if it is represented with small letters, if it is represented in lowercase, it shows that it's a non-human gene, that it could be of any other animal except for man, right? So remember this. You might not find these things in the lower books, लेकिन आपको ये सब चीजें नजर आएंगी in research papers and research related articles में आपको नजर आता है. If at all they are mentioning about the human gene, then they have to write it in capital letters, and if it is not a human gene, it will be represented with small letters. Okay, anyways, so let me share the screen for our further. Where is it? I think this we had seen in our last class, the codominance, right? We had seen this. ये बात समझ में आ गई थी आप लोगों को? कोडोमिनेंस वाली बात समझ में आ गई थी? You all can see the screen, I suppose. Yes, sir. Okay. तो ये कोडोमिनेंस वाली बात आप लोग को समझ आ गई थी कि यदि डोमिनेंट एलील्स यदि अपने आप को इक्वली एग्जिबिट करते हैं फिनोटाइपिकली, जेनेटिकली या फिर जीनोटाइपिकली, वो भले ही किसी भी कॉम्बिनेशन में हो, यानी कि होमोजाइगस या फिर हेटेरोजाइगस, लेकिन मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करते हुए हमेशा जो डोमिनेंट एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है. बट इन कोडोमिनेंस या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो डोमिनेंस है जिसमें दोनों के दोनों एलील्स अपने आप को हाइब्रिड फॉर्म में एग्जिबिट करते हैं. यानी कि यदि एक ब्लैक है और एक वाइट है, तो ऑफस्प्रिंग में हमें दोनों के इफेक्ट नजर आएंगे और वो मिक्स्ड इफेक्ट नजर आएगा, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड इफेक्ट. वो ग्रे कलर नजर आएगा. यदि रेड और व्हाइट वाला अपन एग्जांपल देखा था, तो वो उसमें कंप्लीटली कोई भी डोमिनेंट नहीं है, दोनों के इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं एंड दे आर कमिंग एज अ मिक्स्ड इफेक्ट. रेड एंड व्हाइट लेंगे तो शायद पिंक नजर आता था. तो दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें मिक्स्ड इफेक्ट आता है दोनों एलील्स का, और जिसमें दोनों एलील्स के इफेक्ट को अलग अलग नजर आता हो, सेपरेटली दिखते हो, तो हम उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस. जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे स्किन ऑफ, जैसे कि काऊ के स्किन के ऊपर पैचेस दिखते हैं हमें, राइट, और हेन के ऊपर भी था, फेदर्स के ऊपर था. तो दिस इज बिकॉज ऑफ द कोडोमिनेंस. It's an incomplete dominance, but both of them express separately in the offsprings. And in incomplete dominance, they are exhibited in a mixed form. Some other effect comes up as an hybrid. Okay, अब हम चलते हैं multiple layers. अब वैसे ये था दो कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने जो देखी अभी, जो एग्जांपल्स देखे, that was for two different alleles representing the same character. Okay, दो traits हैं एक कैरेक्टर के, लेकिन उसके दो पेयर ऑफ alleles होंगे, तो वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एक ही यूजुअली एक कैरेक्टर के लिए एक ही पेयर ऑफ alleles रहता है, दो ट्रेट्स रहते हैं, एक डोमिनेंट और रिसेसिव, राइट. लेकिन जब एक से दो, एक की जगह दो पेयर ऑफ एलील्स एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उस समय मेंडेलियन प्रिंसिपल कई जगह देखा गया है कि फॉलो नहीं हो पाता बराबर. अब कोडोमिनेंस दो मेंडेलियन प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, राइट, सेपरेटली फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम जो कह रहे थे, जिसमें कि हाइब्रिड या फिर मिक्स्ड इफेक्ट आ रहा था, दैट इज a sort of breach in law of dominance of mental.
वैसे ही मल्टीपल एलील्स हैं. मल्टीपल एलील्स मतलब ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम इटसेल्फ. There are more than 2 alleles which are responsible for one character. Like जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है रैबिट के उसके कोट के कलर के ऊपर. There are how many? Four different alleles which are like enforcing or affecting the character, that coat of the skin, the coat, the skin color. So उसमें जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है. Let me remove this. तो यहाँ दिखाया हुआ है कि एक ब्राउन कलर के होते हैं, एक लाइट ग्रे कलर के होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि उनका फर वाइट रहता है, लेकिन पॉज हो गया, ये हो गया, वो कुछ चीज़ें उनकी ब्लैक रहती हैं. एंड एक कंप्लीटली रिसेसिव है तो वो अल्बिनो, मतलब सब कुछ वाइट. So that way we get 4 different effects because of the multiple alleles which are responsible for the expression of that particular character, right? Phenotypically. That means यदि हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस देखना है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से क्या है, सिंपली एक इफेक्ट डोमिनेंट जो है वो नजर आएगा बाहर फिनोटाइपिकली, और जो नहीं है वो नजर नहीं आएगा. बट when there are more than 2 pairs of alleles of genes responsible for single character, we may have these different effects. One is the incomplete dominance, another is codominance, and this is multiple allele effect, which is called polygenic effect. Okay, तो where does it go? ये आगे क्यों नहीं बढ़ता है? ठीक है. More than 2 alleles को हम multiple alleles कहते हैं. This means that more than 2 possible alleles exist in a population. However, only 2 alleles are inherited. Okay. Example rabbit for the, मतलब समझ में आ रही बात? हर कैरेक्टर के कलर ऑफ स्किन के लिए कोई 2 ही एक पेयर ऑफ एलील ही रहेगा, लेकिन मिक्सिंग कैसे होगी कि एक पॉपुलेशन, बड़ी सी पॉपुलेशन है, उसमें कुछ लोगों में, कुछ इंडिविजुअल्स में कैसा है, ये ब्राउन कलर का रैबिट के जीन्स अवेलेबल है, कुछ में ग्रे कलर के जीन्स अवेलेबल है, कुछ में आई मीन जैसे ना ये वाइट कोट है, ब्लैक एंड टेड पॉज है ब्लैक, और ब्लैक है ग्रे, और तीसरे में अल्बिनो जो कंप्लीटली रिसेसिव. यानी कि 4 जो अलग अलग जीन्स थे, पेयर ऑफ एलील्स थे, वो एक ही इंडिविजुअल प्रेजेंट नहीं है. दे आर देयर इन द पॉपुलेशन. some individuals have this particular pair of alleles, some individuals have this particular pair of alleles, ऐसे. लेकिन when they get crossed up, when they get crossed, तो जो offspring है, जो progeny है, there of course वो 2 ही alleles आएंगे साथ में, एक पेयर ही आएगा, जिसके कारण वो इफेक्ट जो है चेंज हो जाता है. That is polygenic effect, जिसको हम कहते हैं polygenic traits. The polygenic trait is determined by the multiple genes, right? Poly means many, genic means genes. Example, eye color, height. Skin color is controlled by more than 4 genes. Skin color जो है more than 4 genes से controlled है. जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ देखा ना रैबिट के केस में जैसे देखा, तो वैसे ही आई कलर के लिए भी हैं और हाइट के लिए भी, इसलिए हमें वेरिएशंस नजर आते हैं. वी हैव वेरिएशंस इन हाइट, वी हैव वेरिएशंस इन कलर ऑफ आई, and of course the color of skin too. And color of skin is being controlled by more than 4 genes, different pairs of genes. That means the 4 different pairs of genes are available in the population. When they get crossed up, we get the effect, which seems that Mendelian principles are not followed, right? ये है मल्टीपल, जैसे हमारे ये फिंगरप्रिंट्स के लिए भी मल्टीपल जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और आपने ऑलरेडी कलर ऑफ स्किन के बारे में सुना ही है, राइट? और see, some traits are produced by a combination of many genes. Polygenic inheritance occurs when a group of gene pairs act together to produce a single trait. Eye color and the fingerprint are examples. Height, weight, body build, hair and skin color are as well. ये भी इतने सारे हैं जो मल्टीपल जीनिक इफेक्ट्स हैं. अब उसमें यदि आप देखेंगे तो मल्टीपल जीन्स इफेक्ट वन ट्रेट, एक ही ट्रेट के लिए है, ठीक है ना. ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन एटलीस्ट
3 genes, each with at least 2 alleles, right? तो the Punnett square के हिसाब से उन्होंने कुछ निकाले हैं, तो we get different shades, different it seems as if जैसे कि Mendelian principle follow ही नहीं हो रहा है, right? तो ये देखिए कितने shades आ गए यहाँ पे, इतने सारे color के shades आते हैं. That's because of more than 3 genes are responsible for this. So this is how we can see the different discoloration of skin, coloration of the eye, and obesity, cancer. What is this? Autism and diabetes. Polygenic inheritance is a fancy term for these genetic traits that are controlled by more than one gene. Human skin color involves the interaction of at least 3 genes. Skin color variations can be introduced by environmental factors as well. यानी कि environmental factors भी काफी हद तक आपके skin coloration में effect देते हैं. Because I tell you, ये जो 3 प्रकार के at least 3 genes इन्होंने जो कहा है कि यानी कि more than 4 हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था, बताया है कि वो 5 से 6 अलग अलग टाइप के pair of alleles exist करते हैं population में for different colors. One is black, राइट? उसके बाद दूसरा अल्बिनो वाला है. और अब ये सब कैसे इफेक्ट देते हैं देखिए. जैसे मैंने कहा था आपको, शायद बताया होगा या नहीं पता नहीं, स्किन के कलर के लिए कुछ चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं. एक तो है कि देयर आर टाइप ऑफ सेल्स व्हिच आर कॉल्ड मेलानोसाइट्स. आपने सुना होगा आजकल क्रीम में, क्रीम के एड्स में मेलानोसाइट्स का टर्म यूज किया जाता है. Melano means pigment, a site means cell. So cells containing the pigment, which would determine the color of your skin. The more the melanocytes you have under your skin, you'll be more darker. Okay? The less the melanocytes, you'll be fairer. But now see the combinations, the permutations and combinations. More the melanocytes under your skin, you are darker. Less the melanocytes, you are fairer. But if more the melanocytes which are under your skin are far from the epidermis, यदि आपके epidermis से दूर है वो, तो भी you will be on the lighter side, right? If very few melanocytes are there, but they are nearer to the epidermis, the outer skin layer, and they have more of the pigment, then also that means a melanocyte placement under the skin will decide the shade of your skin and the amount of pigment it contains. If it is more, you will be darker. If it is light, you will be fairer, right? So the amount of melanin, the pigment in the melanocyte also determines that. That means there are 2 factors. One is the placement of the melanocyte under the skin and the pigment which is there in the melanocytes, right? And these melatonin sites are, when they are exposed to sunlight, so they have, ये melanocytes जो होते हैं वो disperse हो जाते हैं. यानी अब suppose a round cell is there, when the light incidents on them, these cells, they get बड़े हो जाते हैं, they get enlarged and they get, जैसे अमीबा नहीं होता सूडोपोडिया निकला हुआ, वैसा अमीबा जैसा वो dispersed जाता है. So the more they get dispersed, the pigment gets dispersed and you look more dark. And if the melanocytes content, the pigment content is aggregated at one place, in a smaller place, you won't be darker, you would be fairer. So the dispersion and aggregation of the melanin content in the melanocyte and the dispersion of the pigment content in the melanocytes, even that affects the color of skin. That way, and one more thing is there is one hormone which is called MSH, right? MSH, melatonin stimulating hormone, that's been released by the hypothalamus or the pituitary. You need to study that. तो वो वहाँ से निकलते हैं and then they would affect the release of melatonin, and which is there in the when the light is not there, and when the light is there,
तो वो सेरोटोनिन नाम के कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। दीज आर इंटरकन्वर्टिबल कंपाउंड्स मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। ये यूजुअली इफेक्ट करते हैं आपके पिगमेंट्स को, मेलानोसाइट्स को, मेलानोसाइट के कंटेंट को, मेलानोसाइट के एग्रीगेशन को, मेलानोसाइट के डिस्पर्शन को। दैट वे इतने सारी चीजें हैं, इतने सारे फैक्टर्स हैं जो अलग अलग जीन से कंट्रोल्ड है। दैट इज व्हाई वी गेट अ डिफरेंट शेड ऑफ स्किन एवरी टाइम वी हैव आवर प्रोजेनी। ओके, oh, ये क्या लिखा है? Obesity, cancer, autism and diabetes as your three genes. Now comes one more effect. अभी आपने एक चीज समझ लिया कि एक जीन, एक कैरेक्टर, एक्सप्रेशन, पॉलीजेनिक, जीनोटाइपिक। दो जीन्स एक कैरेक्टर के लिए एक्सप्रेशन, if it is not following the Mendelian laws, it will give the dominant expression, that is जैसे नॉर्मल होता है। लेकिन यदि वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो यू वुड गेट अ मिक्स्ड इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और यदि मान लो दोनों अपने अपने तरीके से अपने अपने अलील्स के इफेक्ट्स को एक साथ शो करते हैं विदाउट मिक्सिंग देम, तो वो हम उसको कहते हैं कोडोमिनेंस। और वही दो से ज्यादा यदि जीन्स अवेलेबल हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए इन द पॉपुलेशन, तो वी हैव different shades, variations in the expression of the phenotypic display, right? अब एक दूसरी बात है कि यदि मान लीजिए एक से ज्यादा थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, पॉलीजेनिक, उसको हम पॉलीजेनिक इफेक्ट कह रहे थे, मोर देन 2 जीन्स जब इफेक्ट करती है। लेकिन पॉलीजेनिक इफेक्ट और एपिस्टासिस लगभग एक जैसी चीजें हैं, राइट? वो कैसे हैं? लगभग दोनों एक जैसी ही चीजें हैं, है ना? जैसे कैसे दोनों पॉलीजेनिक इफेक्ट है, दोनों मल्टीपल जेनिक इफेक्ट है, राइट? एपिस्टासिस। लेकिन कैसा है, एपिस्टासिस और मल्टीपल जेनिक इफेक्ट में फर्क ये आता है कि जब पॉलीजेनिक इफेक्ट में कोई एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ एलील दूसरे पेयर ऑफ एलील्स को यदि मास्क कर देता है मतलब उनको छुपा देता है, तो हम उसको बोलते हैं एपिस्टासिस। कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए कि हमारे इसमें ब्लैक है, कलर ऑफ स्किन की हम बात करते हैं, ठीक है? ब्लैक है, ब्राउन है, और सॉरी ब्लैक है, डार्क ब्राउन है, लाइट ब्राउन है और अल्बिनो फेयर, मतलब ठीक है, 4 कलर्स हैं। पॉलीजेनिक इफेक्ट है तो ब्लैक और ब्राउन वाले यदि मिक्स होते हैं कहीं किसी तरीके से, तो दोनों अपने अपने इफेक्ट में देंगे, डार्क ब्लैक और ब्राउन के बीच का कोई तो भी शेड आएगा, राइट? जिसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर कोडोमिनेंस में काउंट। कोडोमिनेंस में तो हमको सेपरेटली नजर आता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नजर आता है। अब वही ब्लैक और लाइटर ब्राउन के में कॉम्बिनेशन में मिलता है तो वी गेट समथिंग बिटवीन दैट। यदि डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन की क्रॉस होता है तो वी गेट समथिंग इन बिटवीन देम, राइट? तो शेड्स चेंज होते हैं। लेकिन एपिस्टासिस भी वही है, लेकिन एक छोटा सा फर्क है, वो ये कि सपोज करिए कि मैं कहूंगा कि ये 4 पर्टिकुलर एलील्स, पेयर ऑफ एलील्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन में, उसमें से लाइट ब्राउन एपिस्टाटिक इफेक्ट दिखाता है। That means out of these 4 pairs of alleles, that light brown pair of allele is masking the effect of other 3 pairs of alleles. That means जब लाइट ब्राउन और अल्बिनो यदि क्रॉस होंगे तो कैसा होगा? जो ऑफस्प्रिंग होगा वो दोनों के बीच का शेड आना चाहिए, लेकिन वो शेड ना देते हुए वो सिर्फ लाइट ब्राउन का ही शेड देगा। जैसे कि हमारे उसमें डोमिनेंट जीन नहीं बताते हम, लॉ ऑफ डोमिनेंस नॉर्मल जो होता था। लेकिन कैसे है कि वो लाइट ब्राउन वाले में भी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, 2 ट्रेड्स के एक पेयर ऑफ एलील्स है, अल्बिनो में दोनों रिसेसिव वाले। बट this light brown, if it is showing epistatic effect, that means if at all this light brown mixes with dark brown, mixes with black, mixes with white, it will have the effect of light brown only, because it has got a capacity to mask all other pairs of alleles, right?
समझ में आई बात? सपोज करिए कि मैं एक आर्बिट्ररी सिचुएशन दे रहा हूँ, डोंट कंसीडर, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो समझने के लिए सिर्फ, रेस्ट यू नीड टू स्टडी। तो वो सपोज करिए कि व्हाइट कलर का ही जो जीन है, पेयर ऑफ एलील है, वो एपिस्टैटिक मोमेंट शो कर रहा है, एपिस्टैटिक इफेक्ट शो कर रहा है। लेकिन अब देखिए कि वो व्हाइट वाला एपिस्टैटिक शो कर रहा है, यानी कि वो व्हाइट बाकी सभी के इफेक्ट्स को मास्क कर देगा, छुपा देगा। तो व्हाइट ब्लैक से करेगा तो भी व्हाइट नजर आएगा, व्हाइट डार्क ब्राउन से करेगा तो भी व्हाइट नजर आएगा, व्हाइट ऑफस्प्रिंग मिलेगा। व्हाइट लाइट ब्राउन से क्रॉस करेगा तो भी हमें व्हाइट ही नजर आएगा। व्हाई? बिकॉज द व्हाइट इज शोइंग द, दो देयर आर फोर डिफरेंट जीन्स, फोर डिफरेंट जीन्स responsible for one character, that is color of skin, but still the white pair of allele is showing epistatic effect. That means this particular pair of alleles are masking the effect of other multigenic multigenes, polygenes. Okay, सपोज ब्लैक का रहा तो क्या होगा, ब्लैक व्हाइट से भी करेगा तो बाकी डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन या व्हाइट किसी से भी क्रॉस करे, ब्लैक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, बाकी तीनों को छुपा देगा, मास्क कर देगा। तो अब यहाँ पे एपिस्टासिस में भी दो टाइप के एपिस्टासिस हैं, एपिस्टैटिक इफेक्ट है। यदि वो डोमिनेंट जीन वाला पेयर ऑफ एलील बाकियों को मास्क करता है तो हम बोलते हैं डोमिनेंट एपिस्टासिस। दैट मींस कलर ऑफ स्किन में यूजुअली ब्लैक जो है वो डोमिनेंट है। तो ब्लैक वाला जो है, बिकॉज बाकी लाइट ब्राउन और ब्राउन क्यों आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ मेलानोसाइट के प्लेसमेंट, मेलानोसाइट के पिगमेंट का कंटेंट, मेलानोसाइट का एग्रीगेशन और डिस्पर्शन, ये सब डिपेंड कर रहा है, राइट? तो अब देखा जाए तो ब्लैक जो है डोमिनेंट है, लेकिन उसका इफेक्ट अलग आ रहा है बिकॉज यहाँ पे तीन और जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। यदि ब्लैक डोमिनेंट है और वो बाकी तीनों को मास्क करता है तो हर इंसान ब्लैक ही रहता था, ब्लैक ब्राउन भी होता तो भी ब्लैक नजर आता था, ब्लैक लाइट ब्राउन होता तो भी ब्लैक नजर आता था। तो यदि यदि डोमिनेंट जीन बाकियों को मास्क करता है तो वी कॉल इट एज डोमिनेंट एपिस्टासिस। एंड यदि मान लीजिए वो अल्बिनो वाला जो रेसेसिव होता है, रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में ही अल्बिनो फॉर्म हो रहा है, तो उस केस में देखा गया कि यदि रेसेसिव जीन बाकियों को मास्क करता है तो हम बोलते हैं उसको रेसेसिव एपिस्टासिस। ठीक है, I think it's there, it's given there. Metastasis is the type of polygenic interaction where one gene controls the phenotype of another gene for a trait. Both genes have an influence on the physical appearance of the trait, but one that shown epistasis makes the mask the effect of the other. Dominant epistasis, it happens when the dominant allele of one gene masks the expression of all the genes of another gene, all the alleles of the another gene. If an organism inherits one or two copies of the dominant alleles, they will have the trait. Recessive epistasis, when the recessive alleles of one gene mask the effect of either alleles of the second gene, right? समझ में आ गई बात है ये? जैसे यहाँ पे देखिए वाइट, ये आपको मालूम है 9:3:3:2, सॉरी टाइम हो गया। Yes, sir. Okay, ठीक है, we'll continue the next class. That's all for today. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir.